very special teacher from Bangalore. So I will request Ramya ji to introduce him और रिक्वेस्ट करूंगा उनके बारे में कुछ बताएं. रम्या जी, over to you. Yes. So Ankush Bhaiya, we're very honored that we have Ankush Bhaiya amongst us today. And Ankush Bhaiya, he needs no introduction. He's been a mentor and a guide, and most importantly, a friend to many youths. And he's been guiding people throughout and through his courses, not just his courses, but he started this process called the goal setting process, जो बहुत आसानी से उन्होंने goals achieve करना सिखाया हम सबको. And Ankush Bhaiya ने also the gratitude process उन्होंने सिखाया that brought so much positivity amongst all of us. And we're so honored to have you here today, Ankush Bhaiya. So by profession, he's an IT professional and he's an international art of living teacher. He teaches the happiness program and also the Sahat Samadhi courses. Thank you so much, Ankush Bhaiya, for making time for all of us. And with that, without much ado, I'll pass it on to you now. Thank you so much, Ramya, for such a wonderful introduction. Not much have been done by me. It's all happening actually, and I'm so glad you people are joining gratitude and you're doing goal setting, and I'm so glad that it's being useful. And first of all, thank you so much for inviting me today's evening. It's such a beautiful thing to join with so many Art of Living followers, devotees. All right. So, easiest way to make you understand what is today's topic is, I think, this quote. मतलब मुझे लगता है ये कोट पढ़ने से ही एकदम समझ में आ जाता है. शार्पन द सॉ जब हम बोलते हैं तो क्या है ना? So what is this? If I had 6 hours to chop down a tree, I would spend the first 4 hours sharpening the axe. If I get 6 hours to chop a tree, अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटा मिलता है तो 4 घंटा तो मैं एक शार्प करूंगा, 100 शार्प करूंगा. समझ? तो कितना इंपॉर्टेंट है एक्स शार्प रहना, है ना? नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज व्हाट हैपेंस? वी पुट सो मच ऑफ एफर्ट एंड देयर इज नो आउटपुट, और at the same time we get stressed out, we get burnt out. How many of you feel that happens sometimes in your life? होता है ना? कितने बार होता है? Especially today's world, we are doing so many unnecessary things also, right? And देखो, when you are living life, that is going to happen, है ना? When you are cutting trees, that is going to happen. The axe, it's not like हमेशा sharp रहेगा. Possible है क्या? नहीं. जैसे दिन जाते हैं, जैसे in young age we didn't realize that much, isn't it? That renewal was auto. Nature was taking care of that renewal. But as you passed above 25, 30, you see that very soon that X is getting blunt. है ना? जब 100 को शार्प करने का बात होता है तो बड़ा सिंपल है, वो ब्लंट भी हो गया तो जल्दी समझ में आता है. लेकिन जब ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी का बात है ना, तो कई बार हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, समझ में नहीं आता है ना? तो हम लोग ऐसे ही लगे रहते हैं. लेकिन बात तो सेम है. तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि when it is a human mind, human body, what it is called as a sharp saw. For that to understand, you need to understand there are 4 dimensions of human existence. 4 important dimensions, है ना? इसको broadly हम categorize कर सकते हैं: physical, mental, emotional और spiritual, है ना? अगर आर्ट ऑफ लिविंग के भाषा में बोले, सबने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है तो ये सब 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस में कवर हो जाते हैं ना? तो ब्रॉडली ये 4 लेवल पे हमने अपना 100 शार्प रखना है, हमने अपना ख्याल रखना है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, है ना? अभी एक एक चीज डिटेल में समझते हैं. व्हेन इट कम्स टू फिजिकल में शार्प 100 का मतलब क्या हुआ? यू नीड टू बी फिट, फिजिकली फिट. यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल. स्टैमिना होना चाहिए सिस्टम, है ना? ये नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को स्टैमिना चाहिए, एक आईटी पर्सन को भी स्टैमिना चाहिए, है ना? जो जॉब कर रहा है, जो
कोई भी प्रोफेशन हो, स्टैमिना चाहिए, फिटनेस चाहिए। कितने लोग मानते हैं, है ना? जरूरी है। तो फिजिकल लेवल पे आसान है समझना, फिटनेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टैमिना चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है, अपने सिस्टम में फ्यूल नहीं है, तो होता है ना बहुत जल्दी हम लोग लेथार्जी आ जाता है, डिसइंटरेस्ट आ जाता है, डलनेस आ जाता है। तो उसके लिए हमें रिफ्यूल करना पड़ेगा, पेट्रोल बार बार भरना पड़ेगा। तो वो है बॉडी का फ्यूल, क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग लोग सब जानते हैं, प्राण शक्ति, है ना? सिर्फ खाना से नहीं होगा, पूरा 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पूरा प्राण शक्ति देखना पड़ेगा, राइट? तो ये फिजिकल लेवल में आ जाता है। फिर और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, से ओवर सेंसेस, है ना? अगर हमारा सेंसेस हमारा बात नहीं सुनता है, तो कितना लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? जैसे खाने पे कंट्रोल नहीं है। आजकल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखने में कंट्रोल नहीं है। इतना स्क्रीन टाइम हो रहा है, इतना इंफॉर्मेशन, वी आर बम्बार्डेड बाय सो मच इंफॉर्मेशन इन अ डे। तो क्या रखे क्या छोड़े, ऐसा हो जाता है मेमोरी को, है ना? तो वो भी डाटा डिलीट करना बहुत जरूरी है, अनवांटेड डाटा। तो वो सब आएगा मेंटल लेवल पे। फिर एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। देखो, ये तो नहीं कर सकते कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ही नहीं होना चाहिए, चैलेंजिंग सिचुएशन ही लाइफ में नहीं होना चाहिए। वो तो होगा, कितना भी एडवांस कोर्स कर लो, कितना भी आर्ट ऑफ लिविंग कर लो, कितना भी गुरुदेव से ब्लेसिंग ले लो, लाइफ का मजा ही तब है जब चैलेंजेस आएंगे। वो तो रहेगा, अप्स एंड डाउन्स तो रहेगा, लेकिन उसको मैनेज करने का एबिलिटी जब कब आता है? जब आपका स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ है, रेजिलियंस बोलते हैं, है ना? वो मेंटल डोमेन में आएगा। फिर इमोशनल, ये तो सबको समझ में आता है। शुरू में हम लोग ने ये सब चीज बहुत नेग्लेक्ट किया ना, खूब गुस्सा पाल के रखा, खूब एगोनी पाल के रखा। हमको क्या लगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन अभी पता चलता है बाद में कि ये कितना ड्रेन करता है एनर्जी, है ना? गिल्ट, एंगर, जेलसी, कितना जो सिचुएशन और इवेंट हुआ वो तो होके चले गया, लेकिन ये सारे इमोशंस इतना परेशान करते हैं और ये कंटिन्यूअसली एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं। देख रहे हो? तो जब तक कि आपका इमोशनल हेल्थ सही नहीं है, तो आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा नहीं रहेगा। फिर वो बॉडी पे भी आता है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर सेज टुडे मोस्ट ऑफ आवर डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक। मतलब वो शुरू होता है कहीं किसी इमोशन से, और फिर जाके बॉडी में कोई डिसीज बनता है। तो इमोशनल लेवल पे हीलिंग और रिलीजिंग दोज इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या होता है, देखो, बॉडी में तो कुछ हुआ तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इमोशंस को पता नहीं, दिखता नहीं है ना वो तो उसको वैसे ही पता है ये इमोशन मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसको वैसे ही लेके सोने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ दिन में वो बॉडी में भी आता है। और एक चीज हमको इमोशन लेवल पे समझना है कि वेल्थ है ये, एक इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। कुछ भी देखो, हमको सबको, बच्चों को क्या चाहिए? सब मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए। वो पॉसिबल है क्या? नहीं। जैसे हम बड़े होते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। कितना भी मैं होशियार हो जाऊं, जो मैं बोलूं वो नहीं होने वाला है। तो जब मन के हिसाब से चीजें नहीं होती है, फिर भी मन को शांत रखना, वो होता है इक्वानिमिटी। दैट इज, वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर इमोशनली हेल्दी। जब कोई पिछला बर्डन नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, कोई पास्ट इंप्रेशंस नहीं है, तब वो होता है ना? और एक चीज आपको पता चलेगा, उसको तितिक्षा भी बोलते हैं, फोरबियरेंस ऑफ माइंड। फिर और कौन सा लेवल है? लास्ट लेवल, जो जो ऑलमोस्ट हम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते उसको, वो है स्पिरिचुअल लेवल। क्योंकि हमको क्या लगता है कि वो सिर्फ आफ्टर 60-70 करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, देखो, एवरीबडी इज मेड अप ऑफ 7 लेवल्स। तो उसमें जो सोल है, जो स्पिरिट है, दैट वी कैन नॉट एक्सक्लूड, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल लोगों ने ही करना चाहिए। सब लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल है ही, दैट्स व्हाट गुरुदेव सेज। बट वी आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट।
even sometimes you see, even if you are doing very good intellectually, emotionally, लेकिन एक spiritual food अगर अपने आपको आपने नहीं दिया तो वो धृति धीरे धीरे कम होने लगता है. तो उसके लिए जरूरी है कि spiritual aspect. अभी many people through religion they do all this, है ना. religion का main purpose spirituality है, लेकिन अगर मेन पर्पस मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाती है. तो स्पिरिचुअलिटी क्यों करना जरूरी है? स्पिरिचुअलिटी से क्या होएगा? फेथ से बेसिकली बहुत सारा चीजें होता है. करेज, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन हार्मोनी विद नेचर. ये सब आता है जब आप अपने बीइंग का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यू टेक केयर. ये 4 डायमेंशन देखो कितना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बीइंग. शार्पनिंग द सॉ सिर्फ एक सेंटेंस है, लेकिन when it comes to human being you need to take care of all this to keep your saw sharp. सिर्फ खाने का ध्यान रखने से नहीं होगा, सिर्फ इमोशंस का ध्यान रखने से नहीं होगा, सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट करने से नहीं होगा. रिलेशनशिप भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो इमोशन एस्पेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए when it comes to sharpening the saw for a human being, all these areas have to be taken care again and again. That is why there are 4 dimensions and renewal is required regularly in all these 4 dimensions. अभी कैसे करेंगे renewal? How do all these 4 dimensions can be taken care? How you actually keep your saw sharp? So when it comes to physical dimension, what we need to do? We should exercise regularly. We should take care of our nutrition. We should do pranayama and yoga. है ना. फिजिकल एस्पेक्ट में अगर हेल्दी बॉडी रखना है तो ये जरूरी है ना. इमोशनल एस्पेक्ट में क्या जरूरी है? वी नीड टू हैव गुड कनेक्टेड रिलेशनशिप. नो, वी आर सोशल बीइंग. सिर्फ मी एंड माइंड करते हैं तो इमोशनल हेल्थ बड़ा नीचे चले जाता है ना. क्या होगा इफ यू हैव ऑल द सक्सेस बट यू डोंट हैव एनीबॉडी टू सेलिब्रेट? तो इसीलिए वो इमोशनल बिलोंगिंगनेस, even you need to have somebody to take care also. You need to have somebody in your life to give, because that is how human beings are. अगर आपके पास, तभी तो everybody they make kids, because that's when they get somebody to love, they get somebody to give unconditionally. That's a basic human requirement basically, है ना. Service, healing, to give not only to our family but to our social circle also, to have a sense of contribution. उससे emotional enrichment होता है, and that is a very important aspect of us. But unfortunately, we have not been taught like that. हमको सिर्फ बोला है पढ़ो, पैसा कमाओ, then everything happens automatically. किसी ने नहीं बोला कि ये aspect भी बहुत जरूरी है लाइफ का. तो क्या होता है, जब when you get success also you will find like there is something missing. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, when you actually became successful in life, आपको लगा कि ये तो हो गया लेकिन फिर भी अभी लगता है कि कुछ और चाहिए. That's when emotional aspect you need to take care. And then mental aspect. Mental aspect, see, mind अगर sharp रखना है तो आपको sleep बहुत जरूरी है, deep rest बहुत जरूरी है. Gurudev says no, there are 2 aspects of mind. One is focus, one is expansion. If you always keep focusing, अगर हमेशा आप फोकस करते रहोगे, फोकस वाला काम करते रहोगे, तो क्या हो जाता है, उसका माइंड का फोकस करने का एबिलिटी कम हो जाता है. That is why relaxation is required. Expansion means when you look at the sky, how it is, how you feel, that is expansion. There is no focus. Focus is like having a corner. तो वो stress create करता है. But we have to focus. We have to, जब भी हमको कुछ accomplish करना पड़ता है, कुछ काम करना होता है, we have to keep focus, isn't it? लेकिन हमेशा सिर्फ फोकस वाला काम करते रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी ये भजन सुना, that was not a focus, that was a right brain activity. और लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, वो बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर वो एबिलिटी टू फोकस भी खत्म हो जाएगा. इसीलिए टाइम टू टाइम वी हैव टू डू a right brain activity. Deep rest is very much required. Otherwise what happens, brain fatigue happens. That focus becomes very difficult.
And especially when there is a lot of stress, lot of clutter, lot of anxiety, with that focusing and concentration becomes difficult. So mental aspect mein, how do we sharpen the saw? By deep rest, by sleep, by meditation, by relieving the stress. So it's not possible that stress accumulate ही नहीं करो, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है. As you live the life, as I said, nothing will go as per plan. Sometimes surprise happens, तो stress भी होएगा. उसको minimize कर सकते हैं और उसको relieve कर सकते हैं. If you do not want to have stress, means do nothing. That is also not possible. We have to do something. We have to take challenges. तो उसको बार बार renew करना बहुत जरूरी है. And spiritual aspect, what we all do in Art of Living, we meet Gurudev, we listen to knowledge, we have faith, we go deep in knowledge, we have more awareness, we understand the impermanence of life. तो उससे क्या होता है? Spiritual aspect grow होता है, and that is called as being sharp from the spiritual dimension. If you take care of all those 4 dimensions, then your soul is sharp. What do you say? Making sense? हाँ. So लेकिन क्या होता है, देखिए हम लोग भूल जाते हैं, कोई ना कोई एक जगह पे imbalance हो जाता है. लेकिन कितना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कितना डिमांड्स है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है. और वो भी सही है. मतलब मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा, एक्सेप्ट श्री श्री रविशंकर, ऑल एस्पेक्ट्स आर टोटली बैलेंस्ड. ऐसा होगा ना, टाइम टू टाइम थिंग्स विल गो आउट ऑफ ट्यून. तो फिर क्या करना चाहिए? We have to come back and tune ourselves. तो कैसे करते हैं वो? We have to really take time. That is why Ramya said, no, goal setting is one of the things. Goal setting करने से क्या होता है कि time to time you do a life audit, है ना? सोचते कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कौन से dimension में गड़बड़ हो रहा है, फिर वो dimension पे थोड़ा attention देते हैं और fix हो जाता है. अगर वो नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नेग्लेक्टिंग फिजिकल एस्पेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या होगा? मे बी यू आर एंजॉइंग फैंटास्टिक रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, मेंटली ऑल्सो यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर टेकिंग रेस्ट, लेकिन एक्सरसाइज बहुत दिन तक नहीं किया, तो क्या होगा? बॉडी बोलने लगेगा. नी बोलेगा मेरे को, मैं भी इधर हूं, है ना? कुछ ना कुछ गड़बड़ बॉडी में होने लगेगा. तो क्या होगा? फिर समझ जाओ कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हुआ है. Then what we need to do? We need to reprioritize and give attention to the physical aspect. क्योंकि देखो everything is interconnected. अगर बॉडी ठीक नहीं है तो मेडिटेट भी नहीं कर पाओगे. अगर बॉडी ठीक नहीं है तो बच्चों का, फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी नहीं कर पाओगे, इमोशन भी जाएगा, फिर इमोशनल स्ट्रेस आएगा. डू यू सी दिस? और सेम विद एनी अदर एस्पेक्ट ऑल्सो. अगर इमोशंस गड़बड़ है तो वी हैव सीन बॉडी में भी प्रॉब्लम होगा. करेक्ट? अगर इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर करियर, इफ यू आर मेंटली नॉट शार्प, देन फाइनली वो भी सारा दूसरा एस्पेक्ट अफेक्ट होने लगता है. तो दिस 4 थिंग्स, बैलेंस इन 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स ओके, इट विल गो इम्बैलेंस, बट again and again come back and have that intention to keep attention to the area which is neglected and bring back the balance. This is how we keep the saw sharp. And so usko simple word mein kya bolte hain ki you need to spend me time. Regularly practice karna chahiye. Healthy lifestyle, doing exercise, playing games. Now keeping in mind today's world, I am saying कि ये तो मैंडेटरी है ना? जो ये लोग जो ये सब नहीं कर रहे हैं तो कितना भी स्पिरिचुअलिटी कर दो, चैलेंज आएगा ही आएगा, है ना? अच्छा हैबिट्स, प्रॉपर स्लीप, बीइंग हैप्पी, ये तो सब मैंडेटरी है. गुरुदेव बोलते हैं ना, दिस इज नॉट अ लग्जरी नाउअडेज. लाइक डेंटल हाइजीन, वी नीड टू हैव मेंटल हाइजीन. योगा, सुदर्शन क्रिया, सिंगिंग, ये सब टाइम टू टाइम हमको करना ही चाहिए. इन अ डे, इन अ वीक वी शुड कीप. लेकिन कभी कभी अगर ये नहीं हुआ, देन हाउ डू वी डू?
सोचो इम्बैलेंस हो गया, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, बहुत दिन हुए एक्सरसाइज नहीं किया, बहुत दिन हुए साधना नहीं हुआ, होता है ना, कई बार हो जाता है। कोई लाइफ में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है, बहुत दिन हुआ अपने आप की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, या फिर कई बार एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उस टाइम बड़ा चैलेंजिंग फील होता है, क्योंकि हमको पता है कि अपना 100 शार्प नहीं है, समवेयर आई हैव नेग्लेक्टेड माई सेल्फ। कोई कोई बड़ा सा कंपटीशन जब हमको बचपन में वी हैव टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन और वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अ बोर्ड एग्जाम, हम लोग क्या करते थे, बाकी सब चीजें सेट कर लेते थे पहले, सो दैट वी कैन फोकस, है ना। सो दैट इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ ओनली। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्लान कर लेते थे। तो लाइफ में भी अगेन एंड अगेन वी हैव टू डू दैट। एंड इफ यू आस्क मी द बेस्ट वे टू कीप योर सॉ शार्प, देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, वेरी सिंपल। You know, the best part of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar, he understands what are all our challenges. उनको हमारा लिमिटेशन पता है, तो वो हर चीज का हमें एक सिंपल तरीका दे देते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल तरीका हम लोग सबके लिए दिया है। What is that? The easiest way, the best way to sharpen our saw again and again, it's doing the advanced meditation program of Autoclave. It takes care of every aspect, isn't it so? How do you feel after doing advanced course? Body ekdam fresh. I remember Khurshid Batliwala used to say, you do an advanced course, get a new body and new mind. Correct? It's like a servicing to your body and mind. Because whatever aware you are, थोड़ा बहुत लाइफ में imbalance हो ही जाता है, तो time to time वो servicing, deep servicing is necessary. And that's what advanced course takes care. And I really want to tell you, if you all are looking for keeping your saw sharp, there is no other way than advanced course, which is so fastest and easiest on this planet. Because so many things it fixes so fast without you being doing anything. Advanced course में तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है. When Bao used to say, when it is a physical advanced course, you just take your body in the hall. Rest of the thing happen. Isn't it? The teacher gives the instruction, things are so well planned, you just have to listen to the instruction. Even you don't have to make effort to follow. The course is designed so beautifully. And I'm telling you, physically, mentally, emotionally, everything is taken care. Such powerful techniques, such a sequence of the processes that happens in advanced course. Means if you ask my experience, just in first day of the advanced course, half a day of the advanced course, mind changes completely. ऐसा लगता है कहाँ मैं फंसा हुआ था दुनिया में, solutions इतने simple थे, आंखों के सामने थे, लेकिन दिख नहीं रहा था, right? That happens in half of day, and then master the techniques, the processes starts working on you. And by the time the last day of the advanced course happens, all the problem challenges which you are thinking, they're such a big thing and it's very difficult to overcome them. ऐसा लगता है वो energy, strength, courage, confidence सब कुछ आ जाता है. ऐसा लगता है now I can deal with it.